इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पंकज सेट कर। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लावनी 83 पेज नंबर। ये आज का पेज दिख रहा है। हाँ हाँ, बस जाने दे जाने दे। बहुत पीछे है मेरे ख्याल से, 63, 82, 83 अभी आना चाहिए। बस बस आ गया। बीच वाला ऊपर है। हाँ, उसको जरा बड़ा करने, स्क्रीन पे जरा बड़ा बना, लार्ज कर लार्ज। हाँ, ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। ऊपर जाने दे, ऊपर जाने दे। ये तो हो गया है, 23 24 सम हो गया है। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल ही हेडिंग ला। कहाँ जा रहा है तू? बस यहाँ स्टॉप कर। अभी ये रूल पढ़ो बराबर ध्यान से। क्या लिखा है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन सम इंटरवल, then read carefully, integration fx into g dash x dx equal to fx into gx minus integration f dash x, f dash x છે ઉપરથી સેજ ડેશ છે, ઝાંખો છે જરા સાંભળજો, f dash x gx dx, x belongs to I। सुन रहे हैं ना सभी? आयुषी, पंकज? हाँ सर, સાંભળે છે। हाँ, तो यस नो बोलते जाओ। चलो यस। इंटीग्रेशन, हाँ फिर कहाँ निकाल दिया पेज यार, क्यों गड़बड़ करता है पंकज? आया था फिर क्यों निकाल रहा है? 83 पेज ला ले। सर वो मैंने आपको होमवर्क भेजा था सर, आपने चेक किया? अरे होमवर्क की बात बाद में करने, पहले इसको तो सोचो जो मैं बता रहा हूँ वो। आज ओके किया सर। है तो पहले से बोलता है, हर वक्त तैयार करके आना चाहिए, बस रहने दे। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी डैश एक्स डी एक्स बराबर, रूल्स को ध्यान में रखो जरा। कैसे है रूल्स? एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल है, और किसका इंटीग्रेशन करते हैं? एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो प्रोडक्ट फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखो बराबर ध्यान से। एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस करके इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स है। अब इसका प्रूफ देखो, किस तरह से प्रूफ करेंगे। ये बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो क्या लाइन लिखी मैंने, एज एफ एक्स एंड जी एक्स, बस इतना ही रहने दे। अरे भाई बहुत आगे मत बढ़, यहाँ रहने दे। एज एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आई, differentiable function means derivable function, then they are continuous function, that you know very well. Every differentiable function is continuous, but every continuous function may or may not be differentiable, आम याद रखो खास। So here fx and gx are given differentiable function on I, so that they must be continuous function, and also their derivative are continuous. When function continuous, derivatives also continuous. So also f dash x and g dash x are continuous on I.
હવે આગળ જવા દે. Clearly on page number 84, see that clearly बस fx into g dash x, fx and g dash x प्रोडक्ट करो या gx into f dash x, दोनों प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमको रूल्स है हमारे पास कि जब एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट सम डिवीजन एवरी फंक्शन कंटिन्यूस, so that fx and gx already given differentiable, so they continuous, because they continuous their derivative also continuous, and that's why fx into g dash x and gx f dash x are also continuous. Now by derivative rule of product function, you know this rule, d by dx of product function fx dx. How you define derivate? Out of two function, one we put as it is and we derivate second function. So fx I put as it is, derivative of gx g dash x, plus second function gx as it is and derivative of first function we call f dash x. Clear? Rule clear? પૂછું છું ભાઈ. yes sir. જરા રિસ્પોન્સ આપો, જરા કે આમ બંધ કરીને બેસી નહીં રહું ને તો હું તો બોયલા કરીને પટાવી દેવા. ભાઈ તમને સમજ પડી કે નહીં પડી તે મારે ચેકિંગ કરવું હોય ત્યારે તમે રિસ્પોન્સ આપો, એમ બેસી નહીં રહું બંધ કરીને. Therefore by definition of anti derivative, જો આ ડેરિવેટિવ લખ્યું હતું ઉપર, d by dx of fx dx, ફરીથી એકવાર જોઈ લો, fx into g dash x plus gx into f dash x. Now when you write using antiderivative, so left hand side function d by dx of fx dx, right hand side function fx g dash x plus gx f dash x. So by using antiderivative definition, integration of right hand side function, બરાબર, integration of right hand side function, what I say, remember, integration of right side function, that is integration of fx d dash x plus gx f dash x dx should be equal to fx dx. ऊपर जवा दे जरा, जाने दे ऊपर. हाँ देखो आ गया बस. हाँ लाइन आवे वहां रुक जाने का. आ गया क्या नहीं? इंटीग्रेशन fx d dash x plus gx f dash x, that is integration of right hand side, is equal to integration of left side, but integration and derivative reverse process, so they cancel and only fx dx. Follow it? Follow Yes, it? sir. Yes हाँ. sir. फिर बोलो आगे. Yes sir. सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म is equal to right hand side as it is. So what we say, integration fx d dash x dx should be equal to fx dx and minus integration f dash x dx. जो वो सेकंड टर्म है वो मैंने राइट साइड पे ले लिया, नेगेटिव हो गया. समझ में आता है कि नहीं? बराबर. हाँ सर. तो हाँ यही सर समझ. यही अपना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था, जो रूल्स था ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यही लिखा था. कैसे आया? बिल्कुल डेरिवेटिव का रूल जानते हैं, बस उसको ही हेरा फेरी करके हमने सेट कर दिया, दूसरा कुछ किया ही नहीं है. तो ये रूल है एफ एक्स इंटू जी डेस एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स जी एक्स डी एक्स. अभी इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए मैं सपोज कर रहा हूं, जरा आगे जाने दे. क्या सपोज कर रहा हूं? बस यहां रुको, बस बस बस. देखो, टेकिंग एफ एक्स इज यू, मतलब कि एफ एक्स की जगह हम यू लिखेंगे और जी डेस एक्स जो लिखा है जी डेस एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, उधर वी लिख देंगे. तो इन अबव रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, then we can restate the rule as follows. The same rule we restate again by taking fxu and g dash xv. So let's see what happened. Integration, whatever upper term fx d dash x dx. So here we write u into v dx, because fx I call u and g dash x I call v, and both are functions of x. સમજણ પડે છે બરાબર? Yes, sir. લેફ્ટ સાઈડમાં તો ખબર પડી જ જશે, fx ની જગ્યાએ u મૂકવાનું છે અને g dash x ની જગ્યાએ v મૂકવાનું છે. હવે corresponding change we have to write on right side. Look on right side, fx, so we must put u. Now not g dash x, gx, तो gx की जगह क्या लिखेंगे? देखो g dash x v था,
हमने सपोज किया डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर वी, तो जी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन वी डी एक्स, रिवर्स जाओगे तभी जी एक्स मिलेगा। पता चलता है डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स जो वी लिखा है, तो जी एक्स का मतलब हो गया इंटीग्रेशन वी डी एक्स। कोई तो बोलो भाई यार, पंकज राय क्या बंद करके बैठ रहे हैं? यस सर। तो यस सर नो सर तो बोलते जाओ, मैं बोल रहा हूँ घाटा पाड़ पाड़ के, और आप लोग कुछ सुन नहीं रहा है। यू यू इंटू, मैंने बोला कि वो इंटीग्रेशन वी डी एक्स आएगा जी एक्स की जगह। आई एम केयरलेस मत रहो, कैसा मैं बोल रहा हूं वैसा सोचो, और नहीं समझ पड़े तो पूछ लो। जी डैश एक्स की जगह वी है, जी डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर वी बोला जाता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन ले तो इंटीग्रेशन वी डी एक्स जी एक्स हो जाएगा, तो जी एक्स ही है यहाँ, तो फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखा, फिर माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, तो हमने एफ एक्स यू लिया है, तो एफ डैश एक्स तो बहुत सिंपल है, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर से जी एक्स आया तो वो इंटीग्रेशन वी डी एक्स आएगा, और ये दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा डी एक्स। क्या हुआ फिर? हाँ, तो देखो ये रूल याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है क्या, u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। मतलब के u इंटू वी में से एक u को एज इट इज रखो, दूसरा नंबर v है उसका मैंने इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा, प्रोडक्ट फंक्शन का। कौन सा प्रोडक्ट फंक्शन? तो जो हमने u एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव करना है, और इंटीग्रेशन वी डी एक्स तो आगे आया ही है, वही सेम वी डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा। ये है प्रोडक्ट रूल, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। जरा नोट में नोट करो, लिखो, मैं बोलता हूं वो सुना मत करो, बस बस रहने दे। अभी मैं क्या बोलूं, अपनी नोटबुक निकालो, एक पेज निकालो, और ये 5-6 बार लिख दो, ये रूल लिखो पहले। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स लिखते हैं आप लोग के बैठे यस रहे हाँ हैं? सर। ब्लॉक है हाँ सर। लिखो, हाँ लिखो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, पहले लिखो u एज इट इज, तो इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखने से ध्यान में रह जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन करके प्रोडक्ट टर्म लाना है, तो जो हमने u लिखा है एज इट इज पहले में, वो उसका ही डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स लिखो, और इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, उन जगह प्रोडक्ट होगा उसका डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे हम। बोलो रूल समझ में आया? 2-5 दफे लिख जाओ। हाँ सर आ गया। हाँ हाँ, बंद करके, आंख बंद करके लिखो, अपने आप याद आ जाएगा। ऐसा लगता है। हाँ लिखो लिखो, 2-5 टाइम लिखो तो पता चलेगा और याद भी रहेगा। उसका बहुत काम है, सब सम इसके ऊपर आने वाला है अभी। समझ में आया बराबर? हाँ सर हो गया यार। हाँ हाँ बस। तो देखो फिर से ऐसा करो, एक दफे आंख बंद कर दो और सोचो कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, मेमोराइज करो, दूसरा कुछ नहीं है। दोनों में से एक को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, तो मैंने यहाँ u लिखा है, तो u एज इट इज, फिर दूसरा वाले का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर माइनस साइन आएगी, प्लस साइन नहीं माइनस, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो u रखा है उसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, और इनटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, जो प्रोडक्ट टर्म बनता है उसका इंटीग्रेशन होगा। एक दफे आप मनन करके देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, सम बहुत आने वाले हैं।
इसी ऊपर, तो डेफिनेटली वो तो याद रह जाएगा, लेकिन याद अभी से करो तो अच्छा रहेगा। यस सर। हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अरे यार क्या निकाल देता है, क्यों ऐसा कर रहा है भाई? छेड़छाड़ मत करो, जो आ गया है उसको देखा करो। हाँ, अभी मैं क्या बोलूं, यहाँ जो u इंटू वी डी एक्स हमने इंटीग्रेशन बनाया है, तो u एन v में से किसको हम u बोलेंगे, किसको हम v बोलेंगे, वो समझने वाली बात है। ये जो रूल लिखा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बोला जाएगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है टू फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो इसमें कौन सा फंक्शन हम u सिलेक्ट करेंगे और कौन सा फंक्शन v सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। समझे आप? u एंड v हाँ सर। किसको सिलेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट, एट अ फर्स्ट साइट, इफ यू ऑब्जर्व योर फुल फॉर्मूला, then you can say that we select u whose derivative is known, and v selects whose integration is known, then there is no problem arise। समझ लो, देखो अपने राइट हैंड साइड वाली टर्म u है, तो इसके बगल में दूसरा टर्म में du बाई डी एक्स है, मतलब के डेरिवेटिव है। v का इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u एंड v में दो प्रोडक्ट फंक्शन में किसको हम u बोलेंगे, किसको हम v बोलेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, समझ में आ जाने वाला है कि u किसको बोलेंगे कि जिसका डेरिवेटिव हमको पता है, एंड v किसको बोलेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है। बोलो यस और नो, बैठे ही यस रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जवाब देना है अभी? क्या समझाए आप लोगों को? अब डब्बे है, कुछ बोलना समझ में नहीं आता कि कब बोलना यस चाहिए, कैसा समझ आ रहा है सर, तो हमको समझना चाहिए, बस बैठे ही रहते हैं, बुलाते हैं तो बोलते हैं, ये क्या है? इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स में मैं बोल रहा हूं कि किसको u बोलेंगे, किसको v लेंगे। तो ये राइट हैंड साइड वाली आइडिया आ जाती है कि u उसको बोलेंगे कि जिसका डेरिवेटिव पता है हमको, और v वो लेंगे कि जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है, तभी ये फ्रिक यूज मीन्स के इजीली हम अप्लाई कर सकेंगे। आया समझ में? यस सर। चलो नोट देखो इसके बाद। अभी ये प्रॉब्लम हो जाएगा u इंटू वी में, कभी कभी क्या है, दो फंक्शन आता है, इसमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, दोनों का डेरिवेटिव पता है आपको, तभी आपको ये प्रॉब्लम सताएगा कि किसको हम u लेंगे, किसको हम v लेंगे। कभी कभी ऑकवर्ड हो जाता है, ये समझ लो ऑकवर्ड भी बन जाता है, दूसरा जो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट फंक्शन का करना है वो नहीं हो पाता है, तो राइट चॉइस इज द बेस्ट वन। तो व्हाट वी चूज हियर, देखो नोट मैंने लिखा है, एक वर्ड लिखा है, उसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं निकलता है, LIAT करके लिया, जो भी पढ़ो, और इलेट ऐसा लिखा है, देखो ILAT, इसमें से कोई भी ले लो। इसमें L का मतलब है लॉग फंक्शन, I का मतलब है इनवर्स फंक्शन, A का मतलब क्या लेना है, एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये लियाएट जो वर्ड है, लियाएट वर्ड फिर गायब हो गया। राय क्या पंकज छेड़छाड़ बहुत कर रहा है, कहाँ गायब हो गया पंकज? सर नेटवर्क उसके वो प्रॉब्लम। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया, आ रहा है वो। समझाते टाइम पे ही गायब हो जाता है। राय टू अपना लगा दे तो छोड़ो, कभी कभी नुक्स हैरान ही करता है। सर रुको, उसको मैं मैसेज कर रहा हूँ। अभी क्या मैसेज करने की जरूरत है, अपने पास है कि नहीं अपना पेज?
सर वो मैं कास्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा मेरे पास फोन नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है यहाँ पे। चलो तो फिर जाने दो। आज जो मैंने भेजा है एक्सरसाइज 7.6, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाउ केयरलेस बच्चे हैं, पढ़ने की तमन्ना ही नहीं। आज मैंने जो पेज भेजा है ने, हेलो, हाँ सर। हाँ वो निकालो अपने मोबाइल में। ओके सर। एक्सरसाइज 7.6। वरना अपने मोबाइल में भी तो मैंने पीडीएफ भेजा ही है ने, वो उसमें देख लो ने, तो उसमें भी मिल जाएगा वो पीडीएफ फाइल हाँ तो सर, मैंने। हाँ हाँ। हाँ, तो वो 84 वाला पेज जो था लियाएट में समझा रहा था, उसको समझना है तो समझ लो पहले। पेज नंबर 84 है, मतलब कि हाँ सर, लास्ट वो देख। लास्ट टू पेज है, लास्ट टू पेज जो पीडीएफ मैंने भेजी थी लास्ट टाइम, वो पीडीएफ में लास्ट टू पेजेस बाकी बचा है, फिर आज का पेज आने वाला है। तो मैं वही बोलूं कि वो देख लो पहले अपने पास मोबाइल ये में, तो सर कर मैंने ले भेजा ओपन, है। कर ले ओपन। हाँ आयुषी, हाँ सर, करेंगे। કરી દઈશ नहीं કર્યું કે नहीं, तो હું बोलूं તે સમજાશે એમ। हो जो गया, हो गया ने। हाँ हाँ तो जो हाँ लियाएट वर्ड याद रखना है, LIAT मैंने लिखा है, बराबर ध्यान से सुनो। एल का मतलब लॉग फंक्शन है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन है, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन, एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें ये वर्ड का क्या करिश्मा है वो देखना है। तो जो ये लियाएट वर्ड मैंने लिखा है, उसका जो जो नंबर पहला आएगा उसको हम यू बोलेंगे। विच एवर लेटर कम फर्स्ट, टेक इट एज यू, एंड अदर फंक्शन यू सिलेक्ट वी। बहुत सिंपल है। लियाएट, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये वर्ड। और जो लॉग फर्स्ट आया तो लॉग को ही यू बोलो। समझ में आया। मान लो कि यस दो फंक्शन आता है, एक लॉग फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहला आता है वर्ड में कि लॉग फंक्शन पहला आता है। तो लियाएट वर्ड में एल पहला आ गया, मतलब कि लॉग आया पहला। इसका मतलब लॉग को हम यू बोलेंगे और बाकी जो फंक्शन रहा उसको भी बोलेंगे। तभी ये इजीली इंटीग्रेशन कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। हाँ सर। हाँ, फिर देखो आगे। तो एक सम मैं बताता हूँ। 85 पेज पे मैंने दो तीन इलस्ट्रेशन सम ले लिए हैं। तो पहला सम अगर आप देखोगे तो 85 पेज निकालो। हाँ सर, निकल गए। अच्छा, ओके इसमें सर। देखो मैंने लिखा फाइंड इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। अभी तक हम लोगों को इंटीग्रेशन लॉग एक्स का पता ही नहीं था, किया ही नहीं है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन लॉग एक्स क्या है वो पता नहीं है ना। हाँ सर। हाँ तो इसको सर हम, हाँ तो ये कैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो log x को हम लिखेंगे 1 × log x। क्या लिखेंगे? 1 × log x। 1 × log x है तो log x को 1 × log, दूसरा फंक्शन चाहिए हमको, ये तो एक ही फंक्शन है log x। तो दूसरा हमने बना दिया एल्जेब्रिक 1 × log x, तो लिख सकते हैं log x की तरह, है ना। हाँ सर, उसको ऐसे लिख हाँ, सकते हैं। हाँ तो इसमें दो फंक्शन हो गया। वन हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन, बिकॉज वन का मतलब x⁻0, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। और log x तो लॉग फंक्शन है ही। तो दोनों में से किसका नंबर पहला आएगा? लॉग। तो लॉग को हम यू बोलेंगे, तो इसीलिए वो रूल हम याद रखेंगे। तो यू पहला आता है तो यू का मतलब मैंने लिखा log x। फिर इंटीग्रेशन v dx, v का मतलब अब 1 हो गया, पता चल गया कि नहीं?
log x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx हुआ, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो जिसको हमने u बोला उसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx। जो हुआ, जो फॉर्मूला के मुताबिक ही मैंने लिख दिया, मैंने 5-6 बार पढ़ने को बोला था तो इसीलिए हाँ बोला सर, था। याद है तो सर। इसी इसी टाइप मैंने लिखा, वो सुनो और देखो। log x एज इट इज लिखा, इसको बोलेंगे u, फिर दूसरा फंक्शन 1 है उसको बोलेंगे v, तो उसका इंटीग्रेशन v dx का मतलब इंटीग्रेशन 1 dx हुआ, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, तो जो सर log x लॉग का डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव, हाँ, एन इंटीग्रेशन 1 dx। चलो तो अब आंसर लिखना शुरू करें। तो इंटीग्रेशन 1 dx तो आपको पता है x है ना। हाँ सर, हाँ, वन का हाँ, एक्स होता है। तो वो आगे लिख दिया, x इंटू लॉग एक्स आया फर्स्ट टर्म, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो वो पता है आपको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या लिखोगे, डेरिवेटिव लॉग एक्स। 1/x। 1/x, और इंटीग्रेशन 1 dx है x, है ना। हाँ सर। हाँ अब सर। ये प्रोडक्ट में एक्स एक्स कट हो गया, यस सर हाँ बोलते सर। जाओ। हाँ, फिर इंटीग्रेशन हाँ वन सर। डी एक्स का क्या यस। इंटीग्रेशन होगा, एक्स हो गया। तो देखो आंसर आ गया, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस थ्री। एक्स प्लस सी। हाँ सर, गॉट इट। तो कैसे आया वो देखो, वो बाय पार्ट्स रूल का अप्लाई किया। अब और एक दूसरा सम देख लेते हैं, इसके नीचे ही है। ओके सर। हाँ, क्या सम लिखा है बोलो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, देखो x का मतलब एल्जेब्रिक, ई रेस टू एक्स का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो कौन पहला आएगा, लिया एट रूल याद करो, लिखो साइड पे पेज पे लिख दो, LIATE, उसमें देखा करो और बोलते जाओ कौन पहला आएगा। सर सर एल एल्जेब्रिक, में लॉग आएगा। अरे लॉग। ली आई भाई, एट। सर हाँ इसमें दे, हाउ डब्बे है यार, दो फंक्शन जो अपना है उसके बारे में सर सोचो ना। एल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। हाँ, ये एल्जेब्रिक। बोलना चाहिए, तो लॉग लॉग को क्यों याद कर रहा है, अभी लॉग है ही नहीं इसमें, तो लॉग की क्यों बात कर रहा है। LIATE, उसमें जो पहला नंबर जो आएगा इस जो दो फंक्शन में से उसको सिलेक्ट करना है। तो LIATE में तो ई तो लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो हाँ सर। ऑब्वियसली हाँ वो तो भी ही होगा। अगला जो फंक्शन एक्स है एल्जिब्रिक पहले आ जाता है, एल आया, ए एल तो है नहीं तो इसको चेक नहीं करने पड़ेगा, आई आया वो भी नहीं है, फिर एल्जिब्रिक आया तो एल्जिब्रिक एक्स है हमारा, तो उसको यू बोलो, और जो एक्सपोनेंशियल है ई रेस टू एक्स उसको भी बोलो। अभी आया दिमाग में। हाँ सर, यस आ गया सर। समझ। हाँ, तो गड़बड़ गोताड़ा मत करो, फिर मेरा दिमाग बिगड़ जाता है यहाँ के, साला इतना समझा रहा हूँ तो भी समझ नहीं रहा है। सॉरी। चलो तो डॉट। एक्स एक्स एज इट इज रख दिया मैंने, बराबर, फिर इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन जिसको हमने एक्स लिया यू तरीके, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स। बोलो है ना इजी। यस सर। हाँ सर, इजी है। ये बार बार करने से ना फॉर्मूला याद रह जाएगी, आपको याद रखना है वही फॉर्मूला जो मैंने बताई लास्ट में, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स वाली, तो u एज इट इज करो, इंटीग्रेशन v डी एक्स लिखो, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u करो, इंटीग्रेशन v डी एक्स, उसका होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ x एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स की फॉर्मूला के मुताबिक ई रेस टू एक्स ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, देखो अंदर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो तो आपको पता ही है 1 है, तो 1 लिख दिया, फिर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स है, फिर आगे बढ़ो तो एक्स ई रेस टू एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स है ही, तो वही लिखा जाएगा। बोलो आया आंसर समझ में, यस। है ना। यस नो, दोनों यस बोलो सर। है। हाँ, आयुषी बोल रही है लेकिन राय फिर चुप हो जाता है। अभी थर्ड वाला सम देखे, थर्ड वाला, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, देखो इसमें दो फंक्शन है, एक एल्जीब्रिक है एक ट्रिगोनोमेट्री है,
फिर से वो रूल लियाट याद रखो, LIAT ऐसी स्पेलिंग याद रखो, और उसमें से सोचो किसका नंबर पहला आएगा। अच्छा राइट भी सर। लेफ्ट हो गया, वाह कहना पड़ा है। तो हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर एल्जीब्रिक है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री है। आयुषी समझ में आ रहा है? सर हाँ, तो मैं क्या बोलूं पहला कि एक्स स्क्वायर एल्जीब्रिक को पहले लिखेंगे और साइन एक्स तो बाद में आता है। LIAT, ए का मतलब एल्जीब्रिक, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री। तो एल्जीब्रिक हाँ पहला सर। आया, तो एल्जीब्रिक के लिए एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री साइन एक्स बाद में आता है तो बाद में आएगा, बराबर है। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस, देखो माइनस करके इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका होल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या आएगा बोलिए मेरा। इंटीग्रेशन ऑफ साइनस माइनस कॉस एक्स। माइनस कोसेक अंदर लिखा ही है, देख के जाओ, है ना अपने पास, आ गया ना पेज तो। हाँ चलो सर है। सेकंड माइनस, बंद है हाँ गई। हाँ माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। 2x, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स हो गया, बराबर। चलो पहले से हाँ शुरू सर। करो। अच्छा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होगा पहली टर्म। हाँ सर। अच्छा, दूसरी टर्म में अंदर वाला माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस माइनस प्लस होगा। टू भी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है इसीलिए। तो फिर अंदर इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स आया, मतलब कि फिर से प्रोडक्ट आया। देखो एक्स ने कॉस एक्स, उसका हम नहीं कर सकते, इसका हम करेंगे तो बाई पार्ट से ही कर सकेंगे। तो फिर अगेन वी अप्लाई पार्ट्स रूल, ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी तो 3 टाइम करना पड़ता है। पहले दो सम थ्री में तो टाइम। डायरेक्ट एक ही टाइम में किया तो वो हो गया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ समझे आप, एक्स स्क्वायर था तो उसका 2x आया, तो x cos x आया। अब हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगेन तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सेकंड स्टेप पे ये काम पट जाएगा। मतलब कि 2 बाहर रखो और x cos x dx का फिर से बाय पार्ट से रूल उसको अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा। तो देखो फिर से x एल्जीब्रिक है, cos x ट्रिगोनोमेट्री है, तो एल्जीब्रिक कम फर्स्ट। सो देयरफॉर x पुट एज इट इज, दैट इज कॉल्ड u इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन जिसको हमने एज इट इज लिखा है x, उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x एंड इंटीग्रेशन cos x dx, इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे बाद में। देखो तो माइनस एक्स हाँ स्क्वायर सर। कॉस एक्स पहला है, अभी बाहर 2 है वो सब में अंदर ले जाओ तो 2x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो सेकंड टर्म आया 2x sin x, पता चला बराबर। हाँ सर चल अच्छा गया। अच्छा, अभी फिर से वो 2 तीसरी टर्म से भी प्रोडक्ट होगा, बाहर 2 है तो -2 करके डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपको पता ही है 1, और वन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos x का तो sin x आएगा वो तो साइन पता एक्स। है। फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है तो sin x का माइनस cos x होगा, तो इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस 2 cos x लिखा है। फिर से बोलो, बराबर समझ लो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 हो गया ना, हाँ सर डेरिवेटिव एक्स। और cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आएगा। हाँ सर। अरे सॉरी, साइन एक्स आएगा, क्या आएगा साइन एक्स। तो वो साइन एक्स। हुआ, हाँ तो वो क्या हुआ 1 इंटू साइन एक्स का मतलब साइन एक्स। पर इसके बाद इसका फिर से इंटीग्रेशन तो करना ही है, प्रोडक्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आता है, तो हाँ माइनस सर। माइनस प्लस 2 कॉस एक्स हुआ। ऐसा, ओके। ये हमने थोड़ा एग्जाम्पल बताया कि हाउ टू अप्लाई बाय पार्ट्स रूल। नाउ वी सी द सेम वर्क इन एक्सरसाइज 7.6 जो मैंने आज भेजा है पेज आपका, तो वो दिखाओ। और एक ओके पेज, सर। हाँ एक पेज ला दे जो राय पहला 86 स्क्रीन के ऊपर। सर एक सेकंड में डाउनलोड कर लो सर। हाँ कर ले जल्दी, 4-5 पेज है, तभी अच्छा रहेगा आपको समझने में भी और मुझको समझाने में भी।
वो पंकज तो गायब ही हो गया, क्या उसके ऊपर डिपेंड करे। नाइन्टी वन पेज तक है आज का वर्क, 86 से 91। हाँ सर, डाउनलोड हो गया, 21 सेकंड में आता हूँ, स्क्रीन शेयर। पहला पेज नंबर लेके आओ, 86। कहाँ चला गया भाई राय? आज राज नहीं आया? છે સર રાજ. હું તો કાયમ જ મૂગો થઈ જાય છે, કોઈ દિવસ ચાલુ કરીને આવતો જ નથી. એમ તો એપ્શન જ પૂરવા જેવી છે. एटी 6 पेज. एक्स इंटू साइन एक्स होगा। ये क्या है? एक्स लॉग एक्स। इसका पहले वाला वो 87 पेज था, एक्स लॉग एक्स वाला। ये इसके पहले वाला है। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं ये भी नहीं, पहले वाला पेज नहीं लिया, 86 वाला। सर रुको, देख रहे हो सर, डाउनलोड नहीं हुआ है मेरा, 21 सेकंड देख लूँ मैं। यार क्या कर रहा है? एक्सरसाइज 7.6 लिखा है।
चलो भाई, टाइम मत मत बिगाड़ो, नहीं तो आगे भी टाइम मैं ले लूंगा। 1 पौने 1 बजे लूंगा, नहीं तो जल्दी करो। बस आ गया। हाँ, उसको जरा बीक बनाओ थोड़ा। अच्छा, चलो तो देखो, अभी वो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बाय पार्ट से हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। अब आपको सोचना पड़ेगा, हाँ, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है, दोनों प्रोडक्ट फंक्शन है। तो इसमें तो मैंने अभी अभी सम बताया, आपको पता ही चल गया होगा कि एक्स एल्जीब्रिक है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। एन एल्जीब्रिक अपना रूल के हिसाब से पहले आता है एलआईटी में, बराबर है। Yes, तो sir. हाँ, तो एक्स को हम यू बोलेंगे, बराबर। तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी का मतलब साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन करेंगे, और जो एक्स हमने लिखा था एज इट इज उसका डेरिवेटिव एन इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और होल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, एक्स एज इट इज हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पता ही है आपको, तो वो माइनस कॉस एक्स हुआ, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी जो बाई डी हम, एक्स ऑफ यू। एक्स का मतलब 1, और इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बराबर है। अभी आगे बढ़े तो माइनस साइन पहले हाँ सर। वाले में से बाहर निकालो, माइनस एक्स कॉस एक्स लिखो, और दूसरी वाली टर्म में अंदर से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहला, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हमको पता ही है साइन एक्स। तो देखो, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पहला सम कंप्लीट हुआ। अभी दूसरा सम, आगे बढ़े, ऊपर जाने दे। एक्स साइन 3x डी एक्स है। अभी इसमें किसको यू किसको वी बोले तो वो तुरंत ही पता चल जाएगा, तो सेम टाइप का तो फॉर्म सर है। एक्स एक्स एल्जेब्रिक है और एक्स यू साइन है। 3x ट्रिगो है, तो एक्स पहला लिखेंगे एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन 3x dx, देखते जाओ अपने हिसाब से सोचो, माइनस इंटीग्रेशन जिसका हमने एज इट इज किया था एक्स, उसका डेरिवेटिव लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन 3x dx। तो बाद में क्या आएगा, एक्स, देखो कोसाइन 3x का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, अगला जो रूल आ गया है वही रूल काम में आने वाला है, नया नया रूल नहीं आने वाला है। साइन 3x का हमने बहुत पहले हाँ सर। लिखा था, तो वो होगा माइनस कॉस 3x, एंड 3x का डेरिवेटिव बोलो या तो x का कोफिशिएंट बोलो, वो नीचे लिखा जाएगा, x इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3, पता चल गया बराबर। Yes, हाँ sir. सर। फिर हाँ, फिर माइनस ओके सर। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हुआ, इंटीग्रेशन साइन 3x का मतलब माइनस कॉस 3x बाई 3। फिर आगे बढ़े तो माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3 का अपना हिसाब से देखो, बहुत सिंपल है। फिर तो वो बाहर माइनस निकाल दिया, प्लस हो गया, नीचे वाला 3 भी निकाल दो तो 1/3 हो जाएगा, सेकंड टर्म में 1/3 हाँ हो सर। गया ना। हाँ, फिर और इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। हाँ, फिर वो तो माइनस निकाल दिया, अभी माइनस मत बोला करो। कॉस 3x का ही सोचो, इंटीग्रेशन कॉस 3x क्या आएगा, साइन साइन थ्री साइन एक्स। 3x बाई 3। स्टेप बाय स्टेप सोचते जाओ, और फॉर्मूला हर रोज दिमाग में रखते जाओ। चलो ऊपर जाने दे, तो क्या होता है, -x/3 cos 3x एंड प्लस 1/3 एंड 3 1/9 साइन 3x। आया समझ में। Yes. हाँ सर, आ गया। अच्छा, अभी देखो तीसरा वाला सम, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ई रेस टू एक्स डी एक्स, ऐसा आया। इसमें भी एक एल्जीब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, और दूसरा फंक्शन ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अपना जो रूल फॉर्मूला मैंने बताई एल आई टी करके, तो उसमें एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आने वाला है, एल्जीब्रिक उससे पहले आ जाता है।
तो मतलब के एल्जेब्रिक वाला फंक्शन हम u लेंगे, तो u का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, इंटीग्रेशन v dx का मतलब इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स dx, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, जो हमने एज इट इज रखा है उसका डेरिवेटिव, एन इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स dx, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। बराबर है, रूल्स को लिखने में समझ हाँ में सर। आ रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़े, इसका इसके पीछे वाला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 2x, है ना। 2x। हाँ, और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ जो मैंने एक सम बताया था बाद पहले इलस्ट्रेशन मैंने जो लिया था, इसमें एक सम ऐसा बताया था कि कई बार 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आया फिर से। देखो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स तो पहला आ जाएगा, उसमें से -2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक्स ई रेस टू एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हम बाय पार्ट्स से ही करेंगे इंटीग्रेशन, पता चला। हाँ सर। हाँ, तो 2 बाहर निकाल के करली ब्रैकेट बना देने का, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगी उसी हिसाब से लिखेंगे, तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 तो बाहर आ गया है, तो करली ब्रैकेट में होगा एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स dx અને होल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा। बोलो, ध्यान में आया बराबर। हाँ सर, आ गया। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप देखो, एक्स स्क्वेर ई रेस टू एक्स -2, પછી ब्रैकेट में देखो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अभी देखो माइनस तो है ही, इंटीग्रेशन अंदर वाले की बात करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो गया, 1, 1। इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, वो ई रेस टू एक्स dx हो गया। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर अभी आने वाला है, देखो एक्स स्क्वेर ई रेस टू एक्स, फिर -2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म के साथ, तो -2x ई रेस टू एक्स, फिर -2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। बोलो, हो गया कंप्लीट। हाँ सर, हो गया। हाँ, तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी सम होगा। अभी देखो एक और आ रहा है, चौथा नंबर, पेज नंबर 87 पे, उसको बराबर ध्यान से पढ़ लो, पेज नंबर 87। हाँ, वो ध्यान से आप देखो, बराबर है, एक्स लॉग एक्स है, क्या करना है वो आप सोचो, एक्स एल्जीब्रिक है, लॉग एक्स लॉगरिथम है, तो विच कम सर, फर्स्ट, सर लिया लॉग, ये हाँ तो एल। लॉग, लॉग आएगा पहला, ऐसा सोचने का। हाँ सर। तो मैंने लॉग एक्स पहला ले लिया, फिर इंटू इंटीग्रेशन एक्स dx लिखा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन जिसको हमने एज इट इज लिखा उसका डेरिवेटिव। आप समझ रहे हैं ना सब कुछ। Yes, हाँ सर, sir. समझ गए। हाँ, तो अपने आप सोच लो, जो है आखिर तक पहुंच जाओ, कोई समझ नहीं पड़े तो पूछ लो। हो गया सर, आ गया सर। समझ में आया ना बराबर। Yes, sir. अभी हाँ। आगे आगे मत पेज देखना, अभी अपनी नोटबुक पकड़ो, और इसमें मैं जो बोलूँ वो सम लिखो और गिन के बताओ, है। Correct. ठीक है सर। बिल्कुल ऐसा ही टाइप का सम दे रहा हूँ, कोई गड़बड़ आएगी नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको गिनना है। बराबर, बोलूँ मैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, Yes, हम sir. दूसरा कुछ नहीं। हाँ सर, बोल हाँ, दो। इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग 2x dx, इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग 2x dx, जैसे हमने अभी गिना ना वो फोर्थ वाला, वैसा ही है, गिनो अपने हिसाब से।
सर हो गया हो गया? क्या आंसर आया बोलिए। सर। लॉग 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 2x हम्म, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस। पहले लिखना चाहिए, बाहर लिखो एक्स स्क्वायर बाई टू पहला, फिर इंटू लॉग टू एक्स, नहीं तो वो एक्स कट हो हाँ जाएगा, सर, कॉमन हाँ हो जाएगा, हाँ। गड़बड़ हाँ आएगी। सर। हाँ फिर माइनस हम्म, एक्स स्क्वायर बाय 4। भैया एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, बस वही है। देखो आप देख सकते हैं सेम आ जाए। अपना सम यहाँ है ही, सेम ही सम है। जरा ऊपर जाने दे, पांचवा सम था ये मैंने जो दिया ना, ये फिफ्थ वाला सम ये रहा। अच्छा, ये यही सम था। हाँ यही सम मैंने आपको दिया था। ओके सर। है बस अभी हाँ बस 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 ठहर जाओ। अभी 6 नंबर वाला आया। आंसर तो आपका हो गया ना सबका? हाँ सर, आगे। हाँ 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 सर, बताइए। हाँ हाँ अच्छा 6 वाला भी ट्राई करो, ऐसे देखें कितना सक्सेस होते हैं। बस घबराना हाँ मत, ओके सर। चालू चालू करोगे ना तो आंसर आएगा। हाँ सर, ट्राई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स डी, बहुत बढ़िया किया है। इसी तरह आप गिनते जाओ, मिल जाएगा सब कुछ। पेज में मत देखना है, अपने हिसाब से गिनो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। સર આમાં પણ એ જ આવશે ને ઓલમોસ્ટ, ખાલી એટલે પેલું એ બદલી જાય, ક્યુબ આવે. જવાબમાં તો ફરક આવશે ને મોટા બેન, કરવાનું છે એ જ રીતે। એક તો વસ્તુ દેખાઈ જ આવે છે ને, પૂછવાનું હોય જ નહીં। LIT પ્રમાણે જ જવાનું, પેલો લોગ આવશે તો લોગ જ આવવાનો છે આમાં બી। ફોર્મ્યુલા બરાબર લગાડો। सर आ गया। क्या आंसर आया? लास्ट वाला आंसर बोलिए। 2x लॉग एक्स माइनस 1/9। अभी तूने क्या गलत किया मैं बोलूं, जरा सोच। जो पहला स्टेप था वो तो शायद अपना ठीक तरीके से लिखा होगा, लॉग एक्स एज इट इज लिखा क्या नहीं, इनटू हाँ सर, इंटीग्रेशन एक्स 2x लॉग एक्स टू एक्स कहाँ? माइनस 1/9 एक्स क्यूब। हेलो एक मिनट, 2x कहाँ से घुसाड़ देता है तू? है 2x कहाँ से आ गया? लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाँ कर सर, देगा एक्स क्यूब बाई 2 डेरिवेटिव। तो फिर एक्स क्यूब बाई 3। तो अभी बोलता है तो 2x क्यों लिख તો दिया? કરેક્ટ गड़बड़ करता है ने। log x एज इट सॉरी इज सर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस करके इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड इनटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स પછી તો log x એઝ ઇટ ઇઝ થયું, પછી x સ્ક્વેર નું ઇન્ટિગ્રેશન ની જગ્યાએ તો ડેરિવેટિવ લખી દે છે, એમ કેમ ચાલે? x क्यूब बाई 3 आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है एक्स क्यूब बाई 3, तो एक एक्स कट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 3 आएगा। 1/3 बाहर, एक्स स्क्वायर का वापस इंटीग्रेशन हाँ तो वो एक्स एक्स क्यूब क्यूब बाई बाई 3। 3, तो फाइनल आंसर ये आएगा कि एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स અને માઇનસ एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। इसमें यही आया सर। हाँ इसमें केयर लेने की है, जब इंटीग्रेशन करना है तो डेरिवेटिव मत सोचना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आया ना बराबर ध्यान में? अब पेज नंबर 88 पे आ जाओ। आखिरी सम आज देख लेते हैं, बाद में वो एक्स्ट्रा वाला सम देखते हैं। 7 वाला नंबर देखो, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, कर सकोगे?
पहले आप मुझको हाँ बताओ, सर कर लेंगे। पहले आप मुझको बताओ कि दो फंक्शन कौन सा है। एक है एल्जेब्रिक अलजेब्रिक एंड और एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्री, नहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भाई, ऊपर इनवर्स लिखा है, साइन एक्स अरे पता हाँ है। बहुत जल्दबाजी हेलो मत करो, साइन इनवर्स एक्स है तो उसको इनवर्स बोलेंगे। तो अभी रूल के हिसाब से LIAT में एल पहला आता है, फिर इनवर्स आता है। देखो आई का मतलब इनवर्स, और इनवर्स। एल्जेब्रिक पीछे जाएगा। समझ में आया बराबर। हाँ सर। हाँ तो इसी हिसाब से सिलेक्ट करो, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन जिसको हमने एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इनटू इंटीग्रेशन एक्स dx, और इन लोगों का प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे। बराबर है, पहला स्टेप क्लियर हुआ। हाँ सर। अच्छा तो बाद में साइन इनवर्स एक्स वैसे का वैसा लिखो। बोलिए इंटीग्रेशन एक्स dx क्या लिखोगे। सर इंटीग्रेशन एक्स डी आएगा x² 2। हाँ फिर माइनस इंटीग्रेशन की साइन पढ़ो, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या लिखोगे। 1/√1 वन वन माइनस माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर। हाँ 1/√1 - x, एन इन टू इंटीग्रेशन एक्स dx का मतलब x²/2। हाँ सर। बराबर है। अब देखो हाँ आगे, सर। हाँ अब भी देखे आगे साइन, ऊपर जाने दे, ये पेज में भी है, देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा इसमें। हाँ हाँ बस देखो, साइन इनवर्स एक्स इंटू x²/2, फिर माइनस हाफ, और अंडर हो गया ऊपर x², डिनोमिनेटर में √1 - x², दिखाई रहा है। यस आप सर। हाँ सर। लिखते लिखते जा रहे हो तो लिखते ही जा रहे हो जाओ, हाँ इसमें देख के लिखते रहो। ऐसा नहीं कि आ गया तो चलो देख लिए, ऐसा नहीं। x²/2 पहले लिखो, फिर साइन इनवर्स एक्स। अभी देखो अंदर क्या गड़बड़ होता है, डिनोमिनेटर √1 - x² है ना, जरा ठहरिए और देखिए, वहां ऊपर x² है, तो मैं क्या सेट कर रहा हूं, 1 - x² लिखा, फिर -1 किया। ऐसे क्यों किया, वो फॉर्मूला बनाने के लिए। ऐसे अगर हम x²/√1 - x² दिखा करेंगे ना तो कोई होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने क्या सोचा कि नीचे रूट में है 1 - x², तो ऊपर पूरा विदाउट रूट में बना देता हूँ, 1 - x², ब्रैकेट बना दिया, देखा आपने। फिर 1 को बैलेंस करने के लिए -1 लिखा, -1 + 1 तो निकल जाएगा। तो -x², माइनस कहाँ से लाया, तो जो बाहर था ना माइनस, हेलो हेलो, सर। हाँ सर। तो जो बाहर जो माइनस था मैंने अंदर ले लिया, समझ में आया, तो बाहर वाला प्लस ही रहे, प्लस बन गया है। समझ में आया कुछ, हाँ सर। अरेंजमेंट समझो मैंने कैसे समझ गए अरेंजमेंट सर। किया। हाँ फिर प्लस हाफ, और 1 - x² को सेपरेट डिवाइड करोगे √1 - x² से, तो वो ऊपर हो जाएगा √1 - x², है ना। देखो ये रहा। यस सर। हाँ और इसके बाद माइनस हाफ करके इंटीग्रेशन 1/√1 - x, मतलब कि सेपरेट बना दो। अभी सेपरेट बनने के बाद जो पहली वाली टर्म है x²/2 साइन इनवर्स एक्स, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। अब अब की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाफ करके इंटीग्रेशन √1 - x² dx, ये लोगों ने ये सम बाद में फॉर्मूला आने वाला है वो यहां ले लिया है। समझ लो मैं जो बोल रहा हूं वो क्या फॉर्मूला लिख दिया है, √a² - x² करके आई है। अभी इस टाइप की फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं, वो बाद में आने वाली है, लेकिन ये सम उसने पहले ये एक्सरसाइज में ले लिया है। तो अभी हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √a² - x² की मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, वो लिखो, बाद में हम इसको अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बराबर है, वो बाद में आने वाली है ये एक्सरसाइज के बाद। यस सर। हाँ तो हाँ देखो सर। लिखो इंटीग्रेशन √a² - x² बाहर लिख दो,
कोई फॉर्मूला साइड पे, तो उसकी फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फिर से बोलूं, नो सर। हाँ सर। फॉर्मूला इस तरह है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यही फॉर्मूला अपने नंबर में लगाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर में, तो ए स्क्वेयर का मतलब 1 है ना। तो फॉर्मूला को देखो और इसका यूज करो। यहाँ x/2 की जगह x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर यहाँ 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो x की जगह x और 1 स्क्वेयर 1 जो है वो ए स्क्वेयर है तो ये 1 ही होगा, तो x/1। बोलो समझ में आया? फिर यस सर। फॉर्मूला जो अंडर रूट ए हाँ स्क्वेयर सर, आ गई। फिर उसको ही समझ लो। अभी उसके बाद वाली जो टर्म है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो तो अपने आगे फॉर्मूला आ गई है, -12 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स। उसका तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना, वही हो गया साइन इनवर्स एक्स। यस सर। ये बीच वाला ही था नया, समझे? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। हाँ, फिर हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स पहली टर्म, 1/2 उसमें अंदर प्रोडक्ट कर लो तो x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर 1/4 साइन इनवर्स एक्स होगा और लास्ट में -12 साइन इनवर्स एक्स है। तो अभी जो साइन इनवर्स एक्स सबको मिलाना चाहो तो अभी मिला सकते हैं, वरना x² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रखो, फिर x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, और बाद में जो दो टर्म है साइन इनवर्स एक्स, एक में 1/4 टाइम है, एक में -1/2 है, तो दोनों साथ में ले लो तो -1/4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? यस सर। बराबर ये सर। बस, तो ये 7 वाला थम हमने ले लिया। यहाँ रुक जाते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ या तो आपकी डिफिकल्टी हो तो सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो हाँ सर। पिछले टाइम जो मैंने दिया था वो सम, तो वो सम 21 डेट में दिया था मैंने, 21। हाँ सर। तो उसमें मैंने 11 सम दिए थे, 11, हाँ वन सर, कर से लिए। 11। तो सभी आ गया कि कोई प्रॉब्लम है? जिसका डिफिकल्ट हो तो वो मेरे को बताओ, तो मैं आपके साथ गिन के बता दूं। सर मैंने किया हुआ है, किया तो आप हुआ एक बार तो उसको है। यही चेक कर लो। हाँ, वो तो कर लेंगे। कहाँ पे है? सर रुको, मैं डाउनलोड कर। हाँ, डाउनलोड कर दें, देख लेते हैं। और आयुषी तूने तो नहीं भेजा? હું તો એકચ્યુઅલી મારામાં છે ને સર ફોટોઝ નથી આવતા મેં क्यों नहीं? પ્રોબ્લેમ कैसे ફોકસ नहीं જ आता? नहीं થતું। अरे इतना बढ़िया आता है ना, क्या नहीं आता है? ये आप लोगों एक्सक्यूज बहुत आराम से निकाल देते हो, है ना? अरे नहीं आता है तो उसको फोन करके उसको बोलना कि मेरे में डाउनलोड करो, देखो कैसा आता है कि नहीं। फिर સર મારામાં ફોટોઝ જ નથી પડાવતો મારા પોતાના તો એમ કહું છું। તારા પપ્પાનો હોય તેમાંથી લઈ લેવાનું, બધામાંથી મળે જ ને દીકરા। આવું બધું કરે ચાલે કઈ? ભણવા બેઠા છે તો એને કે રસ્તા સોલ્યુશન શોધવાના જ નહીં આપણે, હે? એમ ચાલે થોડું કઈ? આપણે માંડા પડીએ તો ડોક્ટર ત્યાં દોડીએ જ ને, હે? આ બી એવું જ કહેવાય, આપણી બીમારી આવી ગઈ તો એને સોલ્વ કરવી તો પડે ને। બેસી રહીએ તો બીમારી વધતી જાય। આ પેલો રાજ બી એમાંનો છે, એનો માઇક્રોફોન બગડેલો છે તો રિપેરિંગ જ નથી કરતો, જો ગાયબ બી થઈ ગયો। રાજ નથી ને અત્યારે, લેફ્ટ થઈ ગયો છે હમણાં। हाँ આયુષી सर, नहीं है। હા, એ તકલીફ છે। राज गायब થઈ गयो, पंकज गायब થઈ गया। आज दोनों को एप्शन में लिख देता हूँ। बीच बीच में लेफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा चलता है। तेरा तो मेरे पास है भाई,
पीडीएफ तो बन गई थी, तो पीडीएफ रख देने इसमें, राइट। सर वही कर रहा हूँ। बहुत टाइम ले रहा है। जो पहले वाला सम जो है 7x + 2/x + 5 होल स्क्वेयर, इसमें कैसे करेंगे आप लोग? तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, तो a/x + 5 + b/x + 5 होल स्क्वायर सही लिखा है। इसके बाद ए और बी निकालना है हमको। बहुत अच्छा है। 7x + 2 ऊपर आएगा, नीचे a × x + 5 आएगा, एंड बी सिर्फ अकेला आएगा। देख लो बराबर है। हाँ हाँ है ना। बस बस ये जाने दे, देखो अभी ऊपर जाने दे। 7x + 2 बराबर a × x + 5 + b हुआ, बराबर है। फिर हमको चाहिए b, तो ए को इलिमिनेट करो। ए को इलिमिनेट करने के लिए x बराबर -5 लिख दिया, तो -5 7 -35 + 2 -33 बराबर है। और उस साइड b, तो b की वैल्यू हो गई -33। फिर कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, तो लेफ्ट साइड पे 7 है, राइट साइड पे ये है, तो a की वैल्यू 7। बस बिल्कुल परफेक्ट है। 7/x + 5 -b/b की जगह हम क्या लिखेंगे? -33। देख यहाँ गलत कर दिया तूने, 7 ही लिख दिया। समझाया? हाँ सर, वो बोलने वाला था मैं। हाँ, वो पहले में 7 बराबर लिखा है, लेकिन बी की जगह भी 7 लिख दिया। -33 निकाली है, तो वो जरा चेक कर लेना, बराबर है, सुधार देने का। चलो दूसरा सम देखें। 1/x² - 16 बराबर है, तो उसको क्या करेंगे हम? 2 फैक्टर्स निकालेंगे, बराबर है। फिर मैंने आइडिया बताई थी, 2 फैक्टर्स हो गया, दोनों का डिफरेंस करोगे तो x² कट हो जाएगा, ऊपर कांस्टेंट आएगा। तो पहले में आपने लिख दिया 1/ क्या लिखा है? बहुत झांका है, 1/x² - 4 लिखा है ना। फिर -1/x² + 4 हाँ लिखा सर। है। तो वो ऊपर जाएगा तो x² कट हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। क्यों 4 लिखा? 4 4 8 होगा, हाँ। तो बाहर आपने 1/8 बैलेंस कर दिया है, वेरी गुड। फिर फॉर्मूला के हिसाब से 1/2a, तो 1/4 log mod x - 2/x + 2, वेरी गुड। और सेकंड वाली टर्म में क्या हुआ, जरा ऊपर जाने दे। सेकंड वाली टर्म ही नहीं लिखा, देखो ये क्या गलत कर रहा है तू। सर नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है। ठीक है ऐसा। नेक्स्ट स्टेप पे तो है -1/8 एंड 1/x² + 2 ये भी गलत लिखा है, जो हाँ लिखा सर। है वो भी। लॉग लॉग ये कहाँ आएगा? ये आप नहीं, फॉर्मूला ही नहीं पक्की करते हैं। देखो 1/8, तो 1/x² + 2 का मतलब 1/2a, तो 1/4 आएगा। फिर क्या होगा? tan−1x/2 आएगा, है ना भैया? हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? वो थोड़ा गलत हो हाँ रहा सर, है। समझ आ रहा है। हाँ, तो वो देखते जाओ। अब तीसरा नंबर निकालो, जाने दे आगे। तीसरा नंबर, हाँ, 1/x (x⁵5 + 1, वेरी गुड। ऊपर नीचे x⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि चाहिए वो चाहिए ही, बराबर है। तो नीचे x5 हो गया, और x5 की जगह t सपोज कर लिया, वेरी गुड। 5x⁴ dx, x4 dx का मतलब dt/5। शाबाश, आगे जाने दे। जो है क्या लिखा है बाद में, x4, यहाँ dx नहीं लिखता है, वो dx लिखने का है, dt/5 बाहर निकाल दिया, और अंदर हो गया t × t + 1, वेरी गुड। इसके बाद सेट किया 1/t - 1/t + 1, एलसीएम देखो तो हो गया, बराबर है, t कैंसल हो जाएगा। तो वेरी परफेक्ट एकदम। 1/5 log t/t + 1, और t की जगह वैल्यू लिख दी, शाबाश।
आगे बढ़े, नंबर 4, सेक्स स्क्वेयर एक्स और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 10x 4 माइनस 10x 10x की जगह t सपोज किया, गुड। सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स को डी टी हो गया, वेरी नाइस। चलो फिर आपने क्या किया ऊपर, वो देखो, वो नेगेटिव निकालना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बराबर है 1/t-4 -1/t-3, t-3 में t कट हो जाएगा, -3 + 4 1 हो गया, वेरी नाइस। तो log mod t-4 माइनस log mod t-3, वेरी नाइस। एंड t की जगह log x, शाबाश, 10x हो गया, गुड। ये करेक्ट है, हाँ। ये, हाँ सर। हाँ, ये पांचों सम में मेरे ख्याल से तीसरा और चौथा करेक्ट आया। चलो पांच वाला, फिफ्थ वाला देखे, इसमें क्या किया देखे, आगे जाने दे। हाँ, प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहले, राइट। ऊपर x4 हो गया +5x² +6, धीरे 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 भाई, देखने दे। अरे भाई, ऊपर वाली टर्म देखने दे मेरे को। फिर नीचे क्या होगा, x4 +9x² +20, नाइस। अभी ऊपर वाली टर्म को डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे और साइड में वर्क किया है ना, बताओ जे। राइट, एक ही टर्म से 1 से ही डिवाइड करोगे तो x4 आएगा। फिर ऊपर वाली में 5x² था, नीचे वाली में 9x² था, तो -4x² बचेगा। ऊपर है, मैंने को देखने ले पहले। ऊपर में 6 14 आएगा, गुड। तो ये बराबर सही है, 1 -4x² +14, माइनस निकाल दिया बाहर, ओके। बस, तो फिर तो करने का क्या है, हो गया बाद में। तो 4x² -14 बाय, वो उसको I1 सपोज कर लिया, राइट। I1 की जगह क्या किया अपने, x²/t रिप्लेस किया। हाँ हाँ, तो रिप्लेसिंग करने से आपका डेटा क्या होता है, 4t+14/t+4t+5, ए बी बराबर परफेक्ट निकाल दिया। तो सही है, जा रहा है बराबर, ठीक ठाक है। अभी ए बी वैल्यू करेक्ट ही होगी ऐसा मान लेता हूं मैं, तो मेथड बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने बताया था उसी टाइप का ही सम है, समझे ना। तो उसके ऊपर जरा ध्यान रख के ही चेक करना, उसका इंटीग्रेशन बराबर लिया है, हाँ करेक्ट है। चलो, इंटीग्रेशन तो बराबर है, आगे बढ़। नंबर आया 6 वाला, 2x/x² - 4 × x² + 9, इसमें यह सपोज करा x² बराबर t, 2x dx बराबर dt, गुड। dt हो गया t-9t + 9, वेरी नाइस। और इसके अंदर 1/1 मिनट, t-4, बीच में माइनस है, राइट। तो 9 + 4 13 सेट कर दिया, गुड, परफेक्ट है, नाइस। चलो आगे बढ़ो, नंबर 7 वाला, x/x³ - 5, यस, इसमें 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुड। वो पहले वाला आया, 1/3 बाहर है, 3x² डेरिवेटिव हो गया तो dt आया बराबर। डिनोमिनेटर में जाने दे, जरा आगे बढ़, t × t-1, फिर सेट कर दिया, शाबाश, बहुत परफेक्ट है, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो, नंबर 8, e⁻x+1, e⁻x-1 वाला बुक में था, हमने e⁻x-1 बताया था, बिल्कुल वैसा ही है, गुड। 1/t dt, तो t, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे करे देखे, जाने दे आगे, आगे जाने दे, बस। हाँ, 1 मिनट, ये गलत किया, बीच में प्लस कहाँ से लिख दिया भाई, माइनस होगा तभी सेट होगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, और माइनस साइन भी निकल जाएगी, ये जरा नीचे उतारने, थोड़ी नीचे उतार, ऊपर वाला देखने दे, बस बस बस, यहाँ रुको। देखो, वहां 1/t × t+1 है, अगर आपने यहाँ बीच में भी माइनस साइन लिख दोगे तो माइनस साइन तो आएगा ही, टी जाएगा, फिर -t-1 होगा ना, तो टी कट हो जाएगा, -1 नहीं है, ऊपर +1 है, तो इसको आगे पीछे कर लो, पहले में 1/t लिखो और हाँ सर, माइनस, देखा। हाँ, बाद में -1/t+1 लिखो,
हाँ तो समझ गए। हाँ तो ऊपर नीचे हो जाएगा ये, बराबर है। तो ये चेक करना, यहाँ हाँ भूल है, सर। मिस्टेक है, समझिए ना आप। चलो 9th वाला में क्या किया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस, तो सिंपल है, ए बी निकालने का है, वो तो निकाल देंगे। अभी तो उसमें मास्टरी आ गई कि नहीं, ए बी कैसे निकाल दिया जाता है। हाँ हाँ सर, इसको रहने देते, ये तो पूरा सही है। हाँ वो तो आ ही जाएगा, मैं देख रहा हूँ। बराबर है, इंटीग्रेशन ही देखना पड़ता है, वो तो सही दिखा। चलो अभी 10th वाला नंबर देखे, 10th वाला सर सिर्फ यही डाउट है मेरे को। कहाँ पे, किया है। 10 वाला। हाँ किया है सर। 10 वाला में क्या डाउट हुआ, उसमें फैक्टर निकाल दो। अभी एक्स स्क्वायर सपोज करने से कोई फायदा नहीं है, करोगे तो भी अच्छा है, 2x लिख दो, नीचे x ला दो, बराबर ही है, ये भी चलेगा। देखो रहने दे रहने दे, 2x dx पहले है ना, 2x लिखना, dx बाद में लिखना, ऐसा कोई नहीं लिखता है यार, ये तो बहुत खराब लगता है। dx और इसके बाद 2x, ऐसा थोड़ा चलेगा। पहले क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करते हैं। हाँ सर हाँ ओके। तो हाँ तो ये खराब लगेगा, और को रॉन्ग भी दे देगा, ऐसा क्या गलत लिखता है, किसने ऐसा लिखवाया, ऐसा मेरे पे आ जाएगा। एक्स नो स्क्वायर सॉरी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पहला लिखो, बाद में dx लिखो, तभी अच्छा लगेगा। ये खराब दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो dx अपन 1/2x कर दिया। ये नहीं, ऐसा नहीं, देखो ऊपर नीचे उतारो, ऊपर जो पहले हमने सेट किया ना, जरा नीचे उतार, बस बस इतना रख दे। तो ऊपर नीचे 2x मल्टीप्लाई करो ना पहला, यार समझे कि नहीं। अगले आगे हाँ सर समझ गया। आगे दो सम तो आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2x, नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे 2x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, नीचे 2 स्क्वायर हाँ हो जाएगा। और ऊपर dt तो हो गया कि नहीं, और 2x स्क्वायर जगह 2t × t - 4, जो आपने डायरेक्ट लिख दिया। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ ऐसा लिखना, फिर ऐसा नहीं लिखने का, dx का बराबर dt/2x ऐसा नहीं लिखा जाता, समझे। क्योंकि एक बाजू x होता तो दूसरी बाजू t ही वाला टर्म आना चाहिए, x वाला नहीं चलेगा वहां। 2x dx बराबर dt बराबर है। अच्छा अभी देखो, ये जो आपने बताया 1/2 निकाल दिया कॉमन, राइट। फिर आगे बढ़ो, कैसे सेट किया मैं वो देखने चाहता हूँ। हाँ 1/t - 4 -1/t, वेरी गुड। तो उसको ब्रैकेट तो बनाओ यार, ब्रैकेट नहीं बना रहा है, कितना खराब लगता है। इंटीग्रेशन पहले वाली टर्म में से साथ ही है, दूसरे वाली टर्म में नहीं है। है सर, वो मैं हाँ तो ब्रैकेट में फिर लिखना भूल गया। वो ब्रैकेट में लिखो, और dt भी लिखो, dt तो लिखता ही नहीं, ऊपर dt है तो यहाँ तो dt आएगा ही कि नहीं, बगल में ब्रैकेट बना के हाँ लिखो। सर आएगा। हाँ और dt लिखो, dt का मतलब सिंबल है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा तो 1/8 बराबर है log ऑफ मॉड t - 4 एंड माइनस log t, वेरी गुड, डिवाइड कर दो, t की वैल्यू लिख दो, वेरी नाइस, परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। आपको क्या डाउट लगा था, सही है हाँ ना सर सब? लग रहा था। नहीं नहीं सही है। चलो अभी 11th वाला जो है, इसमें क्या किया आपने, e रेस टू एक्स की जगह t सपोज कर लिया, राइट। तो e रेस टू एक्स dx बराबर dt हो गया। अभी इसमें क्या होगा, dt/t², यस dt/t² इंटू t+1 हुआ। अभी आपने 1/t² लिखा, फिर -1/t - 1 लिखा, तो एडजस्ट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख हाँ रहे सर हो। नहीं हो रहा। हाँ तो ये गलत है, इसके अंदर आपको मेथड वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी, समझो। कौन सी, जरा नीचे उतार, मैं बता रहा हूँ, नीचे उतार थोड़ा। अरे नीचे का मतलब जो जूना, हाँ बस। देखो 1/t² इंटू t+1, वो जो है ना, हेलो। हाँ सर वो। हाँ तो ऊपर अगर हम t लिखेंगे, तो वो t - 1 के साथ प्रोडक्ट होने से t² - t होगा, और t² तो कट होगा, लेकिन ऊपर t होगा, ऊपर तो है ही नहीं। हाँ सर वही ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। t² का मतलब समझते हैं, t रिपीट हुआ 2 टाइम्स, एंड एक फैक्टर t+1 है, तीनों फैक्टर लीनियर बना दो। a/t लिखो, प्लस b/t² लिखो, प्लस c/t+1 लिखो, तो काम हो गया। हाँ सर। फिर एबीसी निकाल के निकालो, बराबर है, तो वो तो हो हाँ सर जाएगा। ये हो जाएगा।
हाँ यही बात है। अच्छा आयुषी, आयुषी कहाँ बंद करके चली गई? यही सर छो। हाँ तो देखा सुना देखा आपने कितना अच्छा हाँ किया सर। था इसने, तो आप कोई थोड़ा तो उसमें से प्रोत्साहन लो यार, हैं, इंस्पायर हो सब, तभी काम बनेगा। देखो यस 11 सब में ये इसने गलतियां की है, लेकिन करोगे तो गलतियां दिखाई देगी ना, करोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। इसकी हिम्मत करके 11 सम कंप्लीट कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, 2-4 सम में उसकी तकलीफ है, वो आ जाएगा, अपने आप सुधर जाएगी बाद में। करना तो पड़ेगा ही भाई। तो नेक्स्ट टाइम जब, आज भी मैं दूंगा है ना थोड़ा सम, बराबर, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं तभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आना। राय आयुषी, हाँ सर। वो, हाँ ध्यान में रखो, आज का जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला सम बताया है ना, उसके ऊपर ही सम आएगा। ओके, चलो तो अब हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू ओके ऑल। सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।